स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सुजाता आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे समास टॉपिक के बारे में, है ना। कौन से टॉपिक के बारे में? समास टॉपिक के बारे में। उस वीडियो में हमने देखा है समास की परिभाषा क्या है, समास के तत्व क्या है, समास के कौन कौन से अवयव हैं और हाई स्कूल लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं అంటే హై స్కూల్ లెవెల్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయని. ఓకే, దాంట్లో మనం ఒక టైప్ గురించి డిస్కషన్ కూడా జరిగింది మనది. ఏది అంటే అవ్యయభావ సమాస్. ఈ రోజు వీడియోలో మనం మిగతా సమాస్ గురించి కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, వీడియో మధ్యలో స్కిప్ చేయొద్దండి, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుందని తెలియదు. ओके, लास्ट टाइम भी मैंने बताया है कि आप एक नोट्स जैसा प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो तो नोट डाउन करते जाइए. हमारे एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कोई हाई स्कूल के स्टूडेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा ये वीडियो, और स्किप मत कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, चलो आज के टॉपिक में हम एंटर हो जाएंगे. समास टॉपिक हमारा चल रहा है. तो समास टॉपिक में हम अव्ययभाव समास के बारे में देखा है. अव्ययभाव समास गुరించి మనం తెలుసుకున్నాం. सेकेंड टाइप कौन सा है? तो हमारा कर्मधारय समास. कौन सा है? कर्मधारय समास. अब कर्मधारय समास के दो कंडीशंस होने चाहिए. कर्मधारय समास అక్కడ ఉండాలంటే टू कंडीशंस అక్కడ అప్లై కావాలి. ఏవి? तो फर्स्ट कंडीशन है उपमा उपमेय. क्या है फर्स्ट कंडीशन? उपमा उपमेय का संबंध वहां होना चाहिए. कर्मधारय समास అక్కడ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఉపమా ఉపమేయ సంబంధం అంటే రిలేషన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉపమా ఉపమేయ అంటే ఏంటని మనం ఎగ్జాంపుల్ నుండి చూద్దాము. सेकेंड कंडीशन विशेषण विशेषण. सेकेंड कंडीशन क्या है? विशेषण विशेषण. और विशेषण विशेष क्या है? इसका भी विशेषण विशेष का संबंध होना चाहिए. ये भी हम एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे. और उपमा उपमेय का संबंध जहाँ होता है, जहाँ हम विग्रह करते हैं అంటే విగ్రహ వాక్యం చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఎలాంటి వర్డ్స్ మనకు కనిపిస్తాయంటే రూపి, కే సమాన్, సా ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఎప్పుడు విగ్రహ వాక్యం చేసేటప్పుడు. సెకండ్, విశేషణ విశేష సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు విగ్రహ వాక్యం చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఎలాంటి వర్డ్స్ మనకు అక్కడ కనిపిస్తాయంటే హై జో, హై జో ఈ రెండు కలిపినే ఓకే ఓకే దాంట్లో ఉంటుంది. అది ఎలా అనేది మనం एग्जांपल నుండి చూద్దాము. ఇప్పుడు फॉर एग्जांपल यहाँ है चरण कमल. क्या है यहाँ? उदाहरण क्या दिया है मैंने? चरण कमल. ఇప్పుడు మనం फर्स्ट कंडीशन చూద్దాం. ఇక్కడ उपमा उपमेय का संबंध किस तरह होता है? ఉపమాన్ అంటే ఏంటి, ఉపమేయ అంటే ఏంటి? ఉపమాన్ అంటే దేనితో మనం పోల్చడం జరుగుతుంది దాన్ని అంటారు ఉపమాన్. उपमान नहीं तो उपमा. ओके, उपमान नहीं तो उपमा, दोनों का मीनिंग एक ही है. దేనితో మనం పోల్చడం జరుగుతుంది, పోల్చడం అంటే కంపారిజన్, పోల్చడం జరుగుతుంది దాన్ని అంటారు ఉపమా. దేనిని మనం పోల్చుతామో దాన్ని అంటారు ఉపమేయ. ఓకే స్టూడెంట్స్, దేనితో మనం పోల్చుతామో దాన్ని అంటారు ఉపమా. దేనితో మనం కంపారిజన్ చేస్తామో దాన్ని అంటారు ఉపమా. దేనిని మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నామో దాన్ని అంటారు ఉపమేయ. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది? చరణ్ कमल. एग्जाम्पल ఏంటి? चरण कमल. और इसका विग्रह वाक्य क्या है? कमल के समान चरण. विग्रह वाक्य क्या है? कमल के समान चरण. मैंने आपको बताया था कि विग्रह करते समय हमें कौन से शब्द दिखाई देते हैं? ఎలాంటి వర్డ్స్ మనకు కనిపిస్తాయంటే रूपी, के समान, सा ऐसे वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं. यहाँ हमें दिखाई दिया ना, के समान दिखाई दिया विग्रह करते समय, है ना. तो यहाँ ఓకే, ఈ విగ్రహ వాక్యం మనం చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? దేన్ని దేంతో పోల్చడం జరుగుతుందని కనిపిస్తుంది? చరణ్ కమల్, కమల్ని చరణ్తో పోల్చినారా? చరణ్ అంటే పాదాలు, చరణ్ అంటే ఏంటి? పాదాలు. పాదాలని కమల్తో పోల్చినారా లేకపోతే కమల్ని పాదాలతో పోల్చినారా? పాదాలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి దేంతో పోల్చడం జరుగుతుంది ఇక్కడ? కమల్ అనే పువ్వుతో. దేంతో? కమల్ అనే పువ్వుతో పోల్చడం జరుగుతుంది. అంటే కమల్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు చెప్పండి?
నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పినాను, ఉపమా అంటే ఏంటి, దేనితో మనం పోల్చడం జరుగుతుంది దాన్ని उपमा अंटारू। फिर कमल क्या होगा, उपमा होगा, क्या होगा, उपमा होगा। अब बचा क्या है हमारा, चरण। దేన్ని పోల్చడం జరుగుతుంది ఇక్కడ, చరణ్ అంటే పాదాలని పోల్చడం జరుగుతుంది, అంటే ఇది అవుతుంది ఉపమేయ। क्या होगा, उपमेय। क्या, चरण उपमेय होगा और कमल उपमा होगा। मतलब उपमेय और उपमा का संबंध है ना, यस। अब यहाँ మీరు అనుకోవచ్చు, మేడం ఇక్కడ ఉపమా ఉపమేయ రాస్తున్నారు కదా, మరి ఇక్కడ ఉపమేయ ఉపమా వచ్చింది కదా అంటే ఎలా అయినా రావచ్చు, అది ఉపమా ఉపమేయ అయినా రావచ్చు, లేకపోతే ఉపమేయ ఉపమా అయినా రావచ్చు। ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినారు మనకు, ఉపమా ఉపమేయ సంబంధ అంటే రిలేషన్ ఉంటుందని చెప్పినారు అక్కడ। सेकंड, अब यहाँ मैंने लिखा है दूसरा एग्जाम्पल चंद्रमुख। कौन सा एग्जाम्पल है, चंद्रमुख। अब इसका विग्रह हम कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, मुख के समान चंद्र करेंगे या चंद्र के समान मुख करेंगे, आप ही बताइए। चंद्र के समान मुख होगा, है ना, क्या लिखेंगे, चंद्र के समान मुख। ఇప్పుడు ఈ ముఖం అనేది ఎంత అందంగా ఉంది అని చెప్పడానికి దేంతో పోల్చడం జరుగుతుంది ఇక్కడ, చంద్రుడితో, అన్నా। చంద్రుడు చాలా అందంగా ఉంటాడు ఎప్పుడు చూసినా కూడా, కానీ అందుకే ముఖాన్ని పోల్చేటప్పుడు ఎప్పుడు చంద్రుడితో, ముఖాన్ని పోల్చేటప్పుడు చంద్రుడితో పోలుస్తారనమాట। तो इसीलिए देखो यहाँ क्या होगा बताइए आप मुझे, चंद्र क्या होगा, मुख क्या होगा, चंद्र क्या होगा, ముఖాన్ని దేంతో పోల్స్తున్నారు, చంద్రుడితో, అంటే దీనితో పోల్చడం జరుగుతుంది, అంటే ఇది చంద్ర ఏమవుతుంది మనకి, ఉపమా అవుతుంది। చంద్ర క్యా హోగా, ఉపమా హోగా। और मुख దేనిని పోల్చడం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ముఖాన్ని, तो ये होगा उपमेय। ओके, ये समझ में आया आपको, ओके। अब आगे हम देखेंगे विशेषण विशेष का संबंध किस तरह रहता है। अब विशेषण विशेष का संबंध किस तरह रहता है देखेंगे। पहले हम देखेंगे विशेषण क्या है और विशेष क्या है। ఫస్ట్ విశేషణ అంటే ఏంటి, విశేష అంటే ఏంటి, అది తెలుసుకుంటేనే ఆ విశేషణ విశేషది సంబంధం ఎలా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ मैं लिखती हूँ यहाँ मीठा आम, क्या लिखा मैंने, मीठा आम। अब यहाँ है आम संज्ञा, है ना, आम क्या है, संज्ञा मतलब नाउन। इस आम के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ, आम कैसा है, मीठा है। आम कैसा है, मीठा है, मतलब इसकी विशेषता यहाँ बता रहे हैं, आम की विशेषता यहाँ बता रहे हैं, इसलिए ये मीठा क्या होगा, ये मीठा होगा विशेषण, मीठा होगा विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ, आम की विशेषता बताई जा रही है, అంటే దేని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, आम। ओके, आम के बारे में बता रहे, तो ये होगा, आम क्या होगा, ये विशेष होगा, आम क्या होगा, विशेष होगा। ओके, समझ में आया। जो संज्ञा होती है ఏదైతే సంజ్ఞ ఉంటుంది అదే మనది విశేషణి ఉంటుంది, जो संज्ञा होती है वही विशेष होता है। ओके, जिसके बारे में विशेषता बताई जाते हैं वही, उसे ही क्या कहते हैं, विशेष कहा जाता है। अब यहाँ क्या है, आम विशेष है और मीठा विशेषण है। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बाकी के थोड़े एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट है प्रधानाध्यापक, और इसका विग्रह वाक्य है प्रधान है जो अध्यापक। क्या है, प्रधानाध्यापक एक सामासिक शब्द है और ये है विग्रह वाक्य, प्रधान है जो अध्यापक। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, सेकंड एग्जाम्पल ఏంటి మంది, महाकवि, और इसका विग्रह है महान है जो कवि। देखो यहाँ हमें विग्रह करते समय, यहाँ जो है जो मैंने बताया विग्रह करते समय वही शब्द हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना, विग्रह वाक्य करते समय। यस, तो देखो अब यहाँ हमें దీంట్లో మనకు విశేషణ విశేషది మనకి సంబంధం కనిపిస్తుందా లేదా అని ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం। मैंने अभी बताया आपको मीठा आम, मतलब आम ये विशेष है और मीठा क्या है, विशेषण है। अब बताइए प्रधानाध्यापक में
प्रधानाध्यापक में विशेषण कौन सा है और विशेष कौन सा है? जो प्रधान, ये प्रधान जो क्या है, ये है विशेषण है ना, विशेषण। और विशेष क्या है? अध्यापक ना। किसकी विशेषता बता रहे हैं? अध्यापक की। फिर ये अध्यापक क्या होगा? विशेष होगा। ओके, यहाँ आपको मैंने क्यों नहीं दिखाया, तो ये प्रधान प्लस अध्यापक इन दो शब्दों से बना है। अगर आप संधि में संधि पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आएगा। प्रधान प्लस अध्यापक से क्या बना? प्रधानाध्यापक बना, है ना। मतलब इसमें प्रधान क्या है? विशेषण है, और अध्यापक क्या है? विशेष है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल చూడండి ఒకసారి ఏంటి एग्जाम्पल అది? महाकवि। महा मतलब महान, महान मतलब ग्रेट, है ना। तो इसका विग्रह वाक्य महान है जो कवि। अब बताइए इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? कवि की, है ना। कवि की विशेषता बताई जा रही है, मतलब ये होगा विशेष। क्या होगा? विशेष। और कवि की विशेषता क्या बताई जा रही है? महा मतलब ग्रेट, महान, तो ये होगा विशेषण। तो इस तरह हमें विशेषण और विशेष का संबंध भी हमें दिखाई दे रहा है। ये हुआ कर्मधारय समास। आगे हम देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में यहाँ भी हमें कुछ कंडीशंस होते हैं, కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై అవుతేనే ఆ సమాస్ దాంట్లో వస్తుంది. అంటే కర్మధారయ సమాస్లో అయినా, తత్పురుష సమాస్ అయినా, లేకపోతే అవ్యయభావ సమాస్కైనా అన్ని దానికి సేమ్ కండిషన్స్ అప్లై కావు. అన్ని దానికి సెపరేట్ కండిషన్స్ అప్లై అవుతాయి అన్నమాట. ఆ కండిషన్స్ని బట్టి ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనం దేంట్లో తీసుకోవచ్చు అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. अब हम देख रहे हैं यहाँ तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में भी देखो उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है. उत्तर पद అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే వర్డ్ వస్తుంది, सॉरी उत्तर पद मतलब जो लास्ट में आया हुआ वर्ड वो क्या होता है? प्रधान, इम्पॉर्टेंट रहता है, और पूर्व पद गौण रहता है. गौण అంటే कम महत्वपूर्ण. गौण का मतलब क्या है? कम महत्वपूर्ण, मतलब इस पद से ये पद थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट रहता है. और दूसरा क्या है? समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? विग्रह करते समय, इसका विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय तुरंत हमें बाद क्या, पूर्व पद के तुरंत बाद हमें क्या पाया जाता है? तो कारक चिन्ह पाया जाता है. कारक चिन्ह అంటే ఏంటి మేడం అని అడగొచ్చు మీరు, అవునా. ఇప్పుడు కారక చిహ్న ఏంటి అనే దానికి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కారక్ అంటే ఏంటి? కారక్ అంటే మనకి తెలుగులో అంటారు విభక్తులు. ఏమంటారు? విభక్తులు అంటారు. దాని గురించి కొద్దిగా చూద్దాం మనం షార్ట్లో. ఓకే, कारक क्या है हम देखेंगे. ओके, कारक, तो कारक को तेलुगु में कहते हैं विभक्ति. कारक की तेलुगु ఏమంటారంటే विभक्ति, और विभक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं. तो कारक कितने प्रकार के हैं और किस कारक में हमें तत्पुरुष समास में दिखाई देता है हम देखेंगे. कारक टोटल 8 टाइप्स के हैं. कितने टाइप्स के हैं? 8 टाइप्स के हैं. लेकिन हमें ये 8 टाइप्सలో కూడా మనకి ఫస్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్ వదిలేసి మిగతా అన్ని దాంట్లో మనకు तत्पुरुष समास అనేది కనిపిస్తుంది. कौन कौन से? वो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक. ये 6 टाइप्स में हमें तत्पुरुष समास हमें दिखाई देता है. तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है. इसका कारक चिन्ह कौन सा है? को है. कौन सा? को. किसका? कर्म कारक का. ఎలా అయితే మనకు విభక్తి చిహ్నాలని మీరు తెలుగులో విని ఉంటారు, అలాగే హిందీలో కూడా कारक और कारक के चिन्ह, विभक्ति चिन्ह. तो यहाँ कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए को. संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए को. अपादान कारक का चिन्ह है से, है ना.
आपको डाउट आया होगा मैडम यहाँ करण कारक में भी से है, దీంట్లో కూడా से ఉంది, ఏ అపాదానంలో కూడా से అనేది కనిపిస్తుందంటే हम यहाँ मैं क्लैरिटी दूंगी उसके बारे में। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की और अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। ओके, तो देखो तत्पुरुष समास में हमारा सेकेंड कंडीशन, कारक चिन्ह के बाद पूर्व पद के विग्रह करते समय पूर्व पद के तुरंत बाद क्या दिखाई देता है, हमें कारक चिन्ह दिखाई देता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। यहाँ कर्म कारक के लिए मैंने यहाँ चिन्ह क्या बताया आपको, को। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा यश प्राप्त। क्या है एग्जाम्पल, यश प्राप्त। और इसका हम विग्रह करेंगे, हम यश को प्राप्त। विग्रह क्या होगा, यश को प्राप्त। अब देखो पूर्व पद है यहाँ, यश पूर्व पद है और इस पूर्व पद के बाद तुरंत बाद हमें क्या दिखाई दिया, कारक चिन्ह दिखाई दिया है ना, को कारक चिन्ह है। मतलब यहाँ हमें पूर्व पद के पहले पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह दिखाई दिया। दूसरा देखिए करण कारक, यहाँ इसका चिन्ह क्या है, से के द्वारा। यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है तुलसीकृत। तुलसीकृत का विग्रह वाक्य क्या होगा, तुलसी के द्वारा कृत। तुलसी कवि है, महान कवि है, तो तुलसी के द्वारा रचित जो होता है उसे कहते हैं तुलसीकृत। तो तुलसी के द्वारा कृत, यहाँ भी कारक चिन्ह आया है। संप्रदान कारक के लिए और को, यहाँ भी को आया है और यहाँ भी को आया है। ये इसकी क्लैरिटी मैं आपको कारक पढ़ाते समय डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके, तो यहाँ संप्रदान में देने का बोध होता है और यहाँ कर्म के साथ आता है। यहाँ देने का बोध होता है और यहाँ कर्म के साथ आता है, इतना ही इस पीरियड में बताऊंगी मैं। तो के लिए को, तो देखिए यहाँ गुरु दक्षिणा मैंने एग्जाम्पल लिखा है और इसका विग्रह वाक्य होगा गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ आया है संप्रदान कारक का चिन्ह, मतलब ये हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। ओके, कैसे देखो कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक चिन्ह आया तो कर्म तत्पुरुष समास होगा और करण कारक का चिन्ह आया तो ये हुआ करण तत्पुरुष समास। और संप्रदान कारक का चिन्ह आया तो संप्रदान तत्पुरुष समास। और अपादान का चिन्ह क्या है, से। और इसके लिए एग्जाम्पल लिखा है मैंने ऋण मुक्त, मतलब ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। यहाँ आया है से, है ना, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। यहाँ इस से का इससे और इससे में क्या डिफरेंस है, ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ అపాదాన్ అంటే దూరం వెళ్ళడం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది దాంట్లో ఈ సేలో। देखो ऋण से मुक्त मतलब ऋण से दूर हुए हैं, उसे कहते हैं ऋण मुक्त। आगे देखिए यहाँ संबंध कारक, संबंध कारक का, की, के, मतलब इसमें चिन्ह क्या है, का, की, के। और इसके लिए एग्जाम्पल है यहाँ शिवालय। देखो शिव का आलय, विग्रह करते समय क्या करते हैं हम, शिव का आलय। तो यहाँ भी संबंध कारक का चिन्ह आया है, इसीलिए शिवालय क्या हुआ, किस समास में आया, संबंध तत्पुरुष समास में आया। किस समास में, संबंध तत्पुरुष समास में। मैंने यहाँ कारक कारक लिखा है, समास क्यों नहीं लिखा है, तो पहले हम कारक के बारे में, कारक के प्रकार के बारे में और चिन्ह के बारे में हम देख रहे हैं और बाद में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसीलिए आपको यहाँ समास का नाम नहीं लिखा है। इसी समास, इसी कारक से हम समास का नाम लिख सकते हैं। तो अधिकरण कारक देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, में और पर। एग्जाम्पल देखिए गृह प्रवेश, क्या है एग्जाम्पल, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, है ना। तो गृह में प्रवेश कहते हैं हम, गृह पर प्रवेश नहीं कहते हैं। संबोधन कारक, अब यहाँ संबोधन कारक में मैंने आपको बताया कारक चिन्ह तो है, अरे अजी है, लेकिन इसका कोई विग्रह नहीं होगा, इसीलिए ये कर्ता कारक नहीं आएगा, मतलब कर्ता कारक का समास नहीं होगा और संबोधन कारक का समास नहीं होगा। बाकी के 6 प्रकारों के समास होंगे। మిగతావన్నీ 6 టైప్స్ లో మనం సమాస్ అనేది తీసుకోవచ్చు, కానీ ఈ ఫస్ట్ వన్ कौन सा,
कर्ता कारक का और संबोधन कारक का समास नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ आज का हमारा समास का टॉपिक। आई थिंक आपको सभी को समास के बारे में समझ में आया होगा, मतलब थोड़ा है, अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं समास का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के समास के बारे में और समास के बारे में पढ़ते हुए कुछ एग्जाम्पल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लेंगे और उसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जो नए होते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।